Our today's class is for 11th and subject is geology, and the topic for today's class is folds in rocks. What are folds? Folds are defined as these are curved or zigzag structures shown by the rock beds. Wherever the rock bed shows the structure like this curved or zigzag pattern, that is known as folds. In other words, we can say these are the wavy undulations in the rock beds that are known as folds. You have seen in the oceans the waves, these folds in the rocks or the structures which resembles with the waves of an ocean or ocean waves. So in waves, we are aware about the arches and troughs or crusts and troughs. Similarly, here in the rock beds, such zigzag structures or curved structures, the upward movement are here also known as upward movement of these rock structures, arches or crusts, and these downwards are known as troughs. So, we can say folds consists of arches and troughs in an alternate manner. The size of fold vary in width from a centimeter to meters up to kilometers. So these folds are not of same size on the surface of the crust in the rock structures. They can vary. They can be in centimeters, they can be in meters, even though they can up to kilometers. These structures can spread up to kilometers on the surface of Earth. So what are the parts of different parts of folds? When we talk of the parts of folds, these have limbs. Limbs are the sloping sides of a fold. These are the sloping sides of the fold. I will try to show here. This is a simple fold, and these are the sloping sides, these which go outward side, and these sloping sides are known as limbs of a fold. These are known as limbs. So the next is an axial plane. What is an axial plane? Axial plane is an imaginary plane. I have shown here this frame-like plane between the fold or in between the fold. In other words, we can say this axial plane divides the fold, one fold, into two equal halves. So, axial plane is a plane which divides the fold into two equal halves. Simple. The next is axis of fold. What is axis of fold? Axis of fold is a line between the axial plane, this axial plane, and the surface of this fold. The surface of any of constituent rock bed or this fold or this surface, between the surface and the axial plane, this intersection line is known as fold axis or axis of the fold. The next is plunge of fold. Plunge of folds, sometimes folds having inclined axes. Some folds have inclined axes. In other words, we can say that this is a fold, and in the rocks behind this there is another same fold of this rock bed behind it. When there is an inclined, or we can make it more inclined, just like this, when there is a line of inclination or inclined axis, that are called plunging fold. This type of folding we known as plunging folding, where there is a one fold which is very high as compared to the folding of the formation of rocks behind it, and there is low formation in the rock beds. The height is very low. So there are chances that there are inclination of fold axes
So the angle of inclination between this front bed and the back bed, this angle of inclination with the horizontal plane, or we can say angle of inclination between this fold axis. This is fold axis. I have told you here, this is fold axis from front fold to back fold. Similarly, here is from front fold to back fold, but the difference is only here is sloping inclination type of this line, inclined line. This is fold axis and this is horizontal line. The angle between the fold axis and horizontal line is known as angle of plunge. This is known as angle of plunge. So, the angle between the inclined fold axis with the horizontal line, inclined fold axis with the horizontal line is known as angle of plunge. So, these are the different parts of fold. So if we try to understand simply so that you can understand easily, ये जो फोल्ड्स हमारे होते हैं, फोल्ड्स हम डिफाइन करते हैं, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर्स या जिगजैग स्ट्रक्चर्स होते हैं रॉक बेड्स में. जिगजैग स्ट्रक्चर्स जो रॉक बेड्स में, जैसे हमने इसी 11th में यह मेंडरिंग ऑफ रिवर पढ़ा है, उसी तरह रॉक्स में ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं रॉक बेड्स में. कहीं यहाँ पे एक तरह की रॉक हो शेल, यहाँ पे सैंडस्टोन है, इसी तरह से तीसरे रॉक में और टाइप की रॉक है. और इनसे हम ये पता चलता है कि यहाँ ये रॉक जो फॉर्मेशन, नीचे यहाँ पे सैंडस्टोन है लेकिन यहाँ भी सैंडस्टोन ऊपर चली गई है, शेल यहाँ ऊपर है लेकिन यहाँ नीचे शेल आ गई है. जब सेम देखेंगे एक ही रॉक बेड में, यहाँ पे ऊपर नीचे जब हो जाता है जिगजैग पैटर्न हम देखते हैं रॉक बेड्स में, उनको हम फोल्ड्स कहते हैं. दूसरे लफ्जों में रॉक बेड्स में जिन ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो वेवी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वेवी एंडुलेशंस, वेव लाइक स्ट्रक्चर रॉक बेड्स में दिखाई दे रहे हैं, उनको हम फोल्ड्स कहते हैं. फोल्ड्स में इस तरह से यहाँ पे जो ऊपर चली गई हो रॉक्स, ऊपर के लेयर की वही रॉक्स यहाँ पे नीचे आ गई, ऊपर जो चली गई रॉक्स उनको हम, उन एरियाज को हम आर्चेस के नाम से या ट्रस्ट्स के नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं, नाम देते हैं उनको. इसी तरह से ऐसे जो डाउनवर्ड मूवमेंट में चली गई हो उनको हम ट्रफ्स, जो नीचे बेड जो चला गया है उसको हम ट्रफ्स, और जो ऊपर रॉक बेड्स रह चुके हैं वेव स्ट्रक्चर में उनको हम क्रस्ट्स, ऊपर वाले को क्रस्ट्स और नीचे को ट्रफ्स कहते हैं. जिस तरह वेव्स में आपने देखा होगा जो फिजिक्स सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हैं. फोल्ड्स में ये जो अब आर्चेस या क्रस्ट्स होते हैं और ट्रफ्स, ये अल्टरनेट मैनर में ऊपर नीचे होते रहते हैं. ये फोल्ड्स जब हम बात करेंगे साइज में, कहीं पे सेंटीमीटर्स में बड़े होते हैं, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर्स में काउंट किए जाते हैं. लेकिन ऐसे जगहों पे भी फोल्ड स्ट्रक्चर्स है रॉक फॉर्मेशन में जो मीटर्स में हम काउंट करें. इसी तरह से ऐसे भी रॉक स्ट्रक्चर्स है जो अप टू किलोमीटर्स, मीन्स कि इसका कोई मुकर्रर साइज नहीं है, इसका साइज सेंटीमीटर से लेके मीटर्स और किलोमीटर्स तक भी जाता है. अब बात करेंगे हम पार्ट्स क्या क्या है इसके, हम डिफरेंट पार्ट्स जो है जब हम फोल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं रॉक फॉर्मेशंस में तो उनके पार्ट्स को कौन कौन सा नाम देते हैं. अगर हम बात करेंगे, अगर हम एक फोल्ड की बात करेंगे, इस फोल्ड में जो स्लोपिंग साइड्स जो होते हैं, जो स्लोपिंग जहाँ पे डिप आउटसाइड की ओर जाता है, डिप डायरेक्शन जो हमने पढ़ा है, इसी तरह हम सिंपली अगर कहेंगे स्लोपिंग साइड्स, उन स्लोपिंग साइड्स को हम सिंपली लिम्ब्स के नाम से पुकारते हैं. दीज स्लोपिंग साइड्स विच मूव फ्रॉम द क्रस्ट टू द आउटवर्ड साइड आर नोन एज, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे मूव टुवर्ड्स द ट्रफ साइड. यहाँ पे जब देखेंगे ट्रफ साइड की ओर, ये भी ट्रफ साइड की ओर, उनको हम लिम्ब्स कहते हैं. एक्शियल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन जो मैंने आपको बताया है, एक इमेजिनरी प्लेन है, ये जस्ट लाइक ए फ्रेम.
ये फोल्ड को बीच में दो बराबर हिस्सों में, एक फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसको हम एक्सियल प्लेन। यहाँ पे भी एक्सियल प्लेन लगेगा, यहाँ ऊपर से नीचे, इसको भी हम एक्सियल प्लेन कह सकते हैं। मीन्स कि ये एक्सियल प्लेन एक फोल्ड, चाहे अपवर्ड, इसको हम अपवर्ड फोल्ड कहते हैं, इसको हम डाउनवर्ड फोल्ड कहते हैं। इस अपवर्ड फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में या डाउनवर्ड फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में जो भी प्लेन, ये लाइन नहीं होती है, ये प्लेन होता है, जस्ट लाइक दिस प्लेन, ये फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसको हम एक्सियल प्लेन कहते हैं। इसी तरह से फोल्ड एक्सिस, ये जो फोल्ड होता है सिंपली, इस फोल्ड में क्या चीज होती है, ये फोल्ड ऊपर एक जगह से पीछे दूर तक के रॉक स्ट्रक्चर जो होता है, पीछे से आगे तक ये जो एक्सिस होती है, लाइन होती है, इसको हम एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं या फोल्ड एक्सिस कहते हैं। यहां से लेके ये फोल्ड आगे जाता है। सो इस आगे वाले सामने वाले फोल्ड के जो पीछे तक, जहां तक ये रॉक फॉर्मेशन होगी, जो विजिबल हमारे सामने नहीं होता है, सामने वाला अगर ये रॉक बेड है जो हम विजिबल हमारे पास है, लेकिन इसके बिहाइंड तक जहां तक ये रॉक फॉर्मेशन है, आगे से पीछे तक ये लाइन जो टॉप सरफेस की है, इस लाइन को फोल्ड एक्सिस कहते हैं हम, या एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। ये एक इंटरसेक्शन लाइन होती है फोल्ड की, जो सरफेस, बेसिकली ये ऐसी इंटरसेक्शन लाइन है जो फोल्ड या रॉक फॉर्मेशन की, रॉक बेड की सरफेस और एक्सियल प्लेन के दरमियान, इन दो दरमियान